हेलो एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीकेंड ऐसे आया जहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी था, सो वी थॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. वी प्लान्ड अ ट्रिप टू उज्जैन एंड ओमकारेश्वर, एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड सम थ्रिल, so we decided to drive. We left home at about 5:30 and from there we reached Samruddhi Highway about say 6 o'clock in half an hour, and then from there the journey was amazing. We stopped for fuel, used the washrooms, and then again continued the journey. Then it was time for breakfast, so we were looking for food. Since we left home at 5:30, we did not find anything on the way until about say 9:30, 10. Finally got some food at the local dhaba. The map showed about 12 hours when we left home, but as we waited, we wasted some time here and there, so the time kept increasing. Now in this vlog, I want to tell you सबसे important car essentials. Should carry a massager for a road trip. It is a blessing. So no more stiffness, no more numbness. It just feels so good. And I must say the roads were really good. महाराष्ट्र से MP road trip तो कर ही सकते. It is very comfortable. From Thane we went to Nasik and then Malegaon, Dhule, Sendwa and now the MP border. And then we stopped for lunch. एक जगह we saw that there was a lot of rush and of course हम number of cars देख के रुक गए कि ये अच्छा होगा. ये actually अच्छा था. So we had some veg lunch. Again it added on 1 hour to our journey. In Maharashtra it was not raining as such, but towards the border there was a little rain. I will tell you the most important car essentials for a road trip, and that is a stool. A stool is also a blessing because your legs are going to thank you later for that. The climate was really good. It was a little scary towards the ghat, but manageable. 2 o'clock looked like 6 o'clock, and then there was heavy rain, so we had to slow down a bit, and that again added on to the travel time. The next car essential is this Vaseline and the hand cream. That is a must because it causes dryness when you're traveling in the car continuously. Then we finally reached Indore और हमने एक और break लिया for some tea and snacks. This inhaler is another essential. I love it. I got it from my recent trip to Thailand. It has camphor and menthol. It is so good. And the other essential is Pringles. You must have Pringles for a road trip. And now we reached Indore finally. And what I saw is open skies, small buildings. So that is a very rare view for us. इतना beautiful skies हमने इंदौर में देखा होगा. Indore and MP overall. We finally reached Ujjain at about 9:30 and then we went off to sleep. Left from the hotel at 5 a.m. in the morning for our darshan. Walked towards a rickshaw stand and took an auto rickshaw and then he took us all around. गाड़ी सब जगह लेके नहीं जा सकते थे. Plus we didn't know the parking and road, so it was very convenient कि हम ऑटो रिक्शा में घूमे. So we went to हरसिद्धि माता टेम्पल. वहाँ पे कोई रश नहीं था तो अच्छे से प्रे करने को मिला. This is also one of the शक्ति पीठ्स एंड यहाँ पे रश नहीं था तो अच्छे से हम लोग घूम पाए वहाँ पे. एंड द इंटीरियर्स, द मेकिंग, इट इज सो नाइस. एकदम प्राचीन मंदिर जैसा बनाया है. वी ऑल्सो वेंट टू द बड़ा गणेश मंदिर एंड देन आफ्टर दैट हम लोग उज्जैन में हमारा महाकाल दर्शन के लिए जा रहे थे. लॉन्ग वीकेंड था तो उज्जैन में बहुत ज्यादा रश था, तो उसमें सब लोग ये टैटू बना रहे थे तो हमने भी बनाया बिकॉज वी हैड सम टाइम और हमारा आरती का दर्शन था तो वो 7:20 के आसपास था, तो हम लोग बहुत अर्ली थे तो यहाँ पे हमने ये टैटू करके थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन वी वेंट इन फॉर द आरती. द क्राउड वॉज इनसेन. लाइन्स बहुत लंबी थी पर हमारी प्री बुकिंग थी तो हम लोग वो बड़ा गणेश दर्शन लेके सीधा आरती के लिए चले गए. और मंदिर में जाने के बाद मैंने सोचा तो था कि मैं रिकॉर्ड करूंगी, व्लॉग बनाऊंगी, बट वहां जाने के बाद वहां पे कुछ ऐसा वाइब था कि मैं भूल ही गया दैट आई हैड टू रिकॉर्ड और शूट. आई इवन फॉरगॉट व्हाट आई केम देयर फॉर. It was just amazing. The darshan, I mean the feedback of the darshan is just speechless. सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वहाँ पे हुआ क्या. मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत जगह था घूमने के लिए. फिर हम लोग कार्ट में निकल के एग्जिट कर लिए. जन करने के बाद लोग बोलते हैं काल भैरव जाना चाहिए तो हम यहाँ से काल भैरव गए. वहाँ पे बहुत रश था तो हमने शिखर दर्शन किया. फिर वहाँ से हम गढ़कालिका माता के पास गए, वो भी एक शक्ति पीठ है. दैट वाज आल्सो वेरी गुड. वहाँ पे भी रश नहीं था. फिर हम मंगल मंदिर भी गए, मंगल मंदिर में भी प्रे किया. ये ऑलमोस्ट आई थिंक एक ही मंदिर है पूरे अपने इंडिया में, एक ही मंगल मंदिर है, तो वहाँ पर भी जाके हमने प्रे किया. देन वी वेंट टू इंदौर. फिर हमारा इंदौर में 2 दिन का स्टे था. वी चेक्ड इन एंड स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन शाम को हम उठ के साइट सीइंग के लिए निकले. अगेन हम लोग ऑटो रिक्शा में ही घूम रहे थे, गाड़ी हमने
हमने पार्क कर दिया था और यहाँ पे रिक्शा इज़ वेरी कन्वीनियंट सब जगह घूमने। इंदौर में साइट सीइंग के लिए होलकर फैमिली के बहुत सारे हिस्टोरिक चीज़ें हैं, तो उसमें से हम एक में एक कृष्णापुर छतरी करके यहाँ देखने को आए थे। इज़ ऑल्सो अगेन एंशिएंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे थोड़ा। यहाँ पे 5 बजे सब बंद हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ बैट्स इन दीज ओल्ड प्लेसेस, तो हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ा। फिर हम राजवाड़ा पैलेस गए उनका घर देखने के लिए। वहाँ पे हम लोग ने सोचा था लाइट और साउंड शो देखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये बार बंद था। फिर हमने थोड़ा सा वहाँ पे जो सब लिखा था वो सब रीड किया, थोड़े चीज़ें देखी, एंशिएंट मेकिंग, उनका जो भी सब डिटेल्स दिया था वो सब पढ़ के पूरे होलकर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा जान के वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि वहाँ भी बारिश होने लग गई। तो हम लोग वहाँ से निकल के अगेन रिक्शा करके डिनर के लिए चले गए। इंदौर वैसे काफी सिटी टाइप था बट नॉट लाइक मुंबई, तो वहाँ पे कैफे था, तो वहाँ हम डिनर के लिए गए, रूफटॉप कैफे, थोड़ा सा स्काईलाइन देखा एंड देन वी वेंट बैक टू द होटल। सुबह 6 बजे हमको निकलना था ओमकारेश्वर के लिए। वो इंदौर से अराउंड 3 आवर्स की दूरी पे थी और ट्रैफिक और गर्दी बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। द रोड्स अगेन वर रियली रियली गुड। आई विश वी हैड सम ऑफ दीज रोड्स इन मुंबई। यहाँ पे थोड़े माउंटेन्स कम थे। अपने महाराष्ट्र में जितने माउंटेन्स दिखते हैं वैसे माउंटेन्स तो नहीं दिखे, बट द रोड्स एंड द सीन्स वर वेरी गुड। फिर हम फाइनली ओमकारेश्वर पहुंच गए। हम नर्मदा नदी क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने प्रे करके आगे निकल गए। नीचे लोग नर्मदा नदी में डुबकी लगा रहे थे। एक प्राइवेट कार पार्किंग के लिए चले गए, वहाँ पे गाड़ी लगा के फिर हम चल के गए। हम बोट से नहीं गए, हम चल के पूरा जाके आए। एंड ऑफ कोर्स हमको वहाँ पे थोड़ा वीडियो निकालने को पॉसिबल नहीं हुआ, इट वाज वेरी हॉट। ना हो सका उतना हमने कैप्चर किया, मंदिर में तो फिर पॉसिबल ही नहीं था। अनदर गेम चेंजर थिंग इज दिस फैन। ये फैन ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया ये पूरे ओमकारेश्वर जर्नी में, बिकॉज इट वाज रियली हॉट देयर एंड ये फैन ने हमारा ट्रिप बहुत ईजी बना दिया। वे बैक हम ये शनि नवग्रह मंदिर गए। पूरा ब्लैक स्टोन में बनाया हुआ मंदिर था। इट वाज रियली नाइस। आई कुडंट टेक पिक्चर्स और वीडियोस इनसाइड। देन वी केम बैक टू इंदौर। फिर बहुत टाइम लगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। फिर हम गाड़ी लगा के रिक्शा लेके फिर से साइट सीइंग के लिए निकल गए। Fortunately, me and my husband have a lot of common interests like spirituality, history, music, adventures. Basically, we enjoy the same kind of experiences. तो history हमारा common interest होते हुए हमारा next stop तो लाल बाग पैलेस था. It was also made by the Holkers only. It is said that this is a replica of the Buckingham Palace. We were short on time, तो हमें quickly जाके देखना था. ये भी 5 बजे बंद होता है. And it was so beautiful, the making, the walls, tiles, everything was so beautiful. Again हम सब कुछ रीड करते हुए slowly सब डिस्कवर कर रहे थे। एंड यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, हम बाहर से ही देख सकते, रूम्स में स्टेप इन नहीं कर सकते। प्लस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वगैरह नहीं जा सकते, ओनली ग्राउंड फ्लोर वाज ओपन। ऊपर अभी भी काम चालू है, यहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे अभी भी काम चालू है। इतना ब्यूटीफुल पैलेस था, ऐसा लग रहा था इट इज सम सेट, एक हॉलीवुड मूवी का सेट लग रहा था। वेरी ब्यूटीफुल, नीटली केप्ट एंड वेल मैनेज्ड। टाइम बहुत कम था तो जल्दी सब कुछ देखना था। रश भी था क्योंकि अगेन वीकेंड था, दिस वाज अ संडे। लाइट्स, इनका रूम्स, इनका सीलिंग, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। इट ऑल फेल्ट अनरियल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। ये वुड भी वही पुराना टाइम का वुड, अपॉल्स्ट्री सब पुराना टाइम का, इसीलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो सब प्रिजर्व्ड है। एंड देन थोड़ा एक्सप्लोर करके हम लोग बाहर तरफ चले गए। वहाँ पे थोड़ा टाइम बैठे थे क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल गार्डन भी है, बहुत बड़ा, जितना बड़ा पैलेस है उससे ट्रिपल ज्यादा बड़ा जगह है बाहर। The overall experience at this palace was just stunning. We were just admiring every piece of art there. पुराने स्विच बोर्ड से लेके पुराने लाइट्स, वॉशरूम्स, everything was so nice and unique to see. ये सब 1900s के पहले बने हुए चीजें हैं जो आज भी इतने अच्छे कंडीशन में रखे और मेंटेन किया। इट वाज सो नाइस टू सी ऑल ऑफ दैट। एंड देन यहाँ का क्लोजिंग टाइम हो गया था, सो वी वर वंडरिंग इतना जल्दी क्लोज क्यों होता है। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे भी बहुत बैट्स है, तो ये रात को सेफ नहीं लगता है, इसलिए बंद करते जल्दी। सारे पेड़ों में अंदर बहुत सारे बैट्स होते हैं, तो वहाँ से भी हमने हमारा रिक्शा बुक कर लिया था। वी वर यूजिंग ओला, उबर एंड ऑल दीज एप्स, सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट। फिर रिक्शा बुक करके हम चले गए नेक्स्ट
शॉप, दैट वाज छप्पन दुकान। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ चाट मिलते हैं, बहुत सारे दुकान है, अलग अलग चीज़ें मिलती है। बट अगेन मुंबई से आते हुए हमें ये इतना एक्साइटिंग नहीं लगा बिकॉज हमारे पास भी सब कुछ मिल जाता है। बट देन हमें एक्सप्लोर करना था तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा पानी पूरी खाया, फिर कुल्फ़ी एक्सप्लोर किया, दैट वाज गुड। वहाँ से हम फीनिक्स मॉल चले गए, तो वहाँ पे वी कुड सी रेनबो विच वाज वेरी रेयर। तो हमने ट्राई किया मोबाइल में कैप्चर करने को, इजीली होता नहीं रेनबो मोबाइल में कैप्चर, बट ट्राई किया है। इवनिंग टाइम में हम लोग फ्री थे, सो रिफ्रेश होने के लिए हम लोग एक सैलॉ चले गए एंड फ्रॉम देयर वी टुक अनदर रिक्शा एंड वेंट टू सराफा बाजार। ये इंदौर का बहुत फेमस सा एक जगह है, ये स्ट्रीट पे पूरा खाना मिलता है, बट अगेन आई एम नॉट अ स्ट्रीट फूड लवर, सो हम लोग थोड़ा सा देख के यहाँ से चले गए। फिर हम चलते हुए बाहर आए तो बारिश होने लग गई, थोड़ा सा पैलेस का लाइटिंग्स देख रहे थे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। रात को पैलेस बंद रहता है। फिर हम ऑटो रिक्शा बुक करके हमारे रूम पे चले गए। And then we left from Indore to Thane. It showed 10 hours 59 minutes. We did 2 Jyotirlings and few other important temples. The trip was so much fun. It was so wholesome. We had a lot of fun on this road trip. This tool is my most essential for a road trip, and believe me, you'll have so much fun with this tool and the cushions and a lot of snacks in the car. And as we came back to Maharashtra, it started raining and धीरे धीरे it became very heavy, so we had to slow down again. फिर उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम वापस से बढ़ गया। हम दूल्हे पहुंच गए थे और लंच टाइम हो चुका था, सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट्स एंड कोइंसिडेंटली हम वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे हम लोग ने जाते टाइम लंच किया था। वी ट्राइड द शेव भाजी एंड रोटी ओवर देयर विच वॉज वेरी फेमस एंड इट वॉज रियली गुड। सो खा के हम निकल गए वापस एंड वी हैड मोर देन हाफ टू कवर एंड थोड़ा बारिश होने लग गया तो स्पीड कम हो गया, बट द वेदर, द रोड, एवरीथिंग वाज सो गुड। रास्ते में ट्रक के वन लाइनर्स ने हमें डेफिनेटली बहुत एंटरटेन किया। च्युइंगम एंड पावर बैंक, द अदर एसेंशियल आइटम। जीपीएस के थ्रू हम जा रहे थे तो धूले से उन्होंने हमें न्यू रास्ते पे कनेक्ट किया एंड देन वी वेंट टू समृद्धि हाईवे एंड दिस इंटरनल रोड वाज सो गुड, एकदम विलेज फील बट प्रीमियम रोड्स थे। और जैसे हम महाराष्ट्र पहुंच ही गए थे तो सारे जगह पे माउंटेन्स दिखने लग गए। माउंटेन्स वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल until they started becoming little overwhelming for us. फिर धीरे धीरे पता चला हमें माउंटेन चढ़ के उस तरफ जाना है, तभी थोड़ा स्कैरी लगा। बट इट वॉज सो लवली। इट वॉज आई थिंक अ न्यू रोड, द रोड वॉज सो गुड। वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड मंकीज़ दिखे हमें, फिर लोग बहुत सारे फ़ोटो शूट के लिए आए हुए हैं। नीचे द वर्ल्ड वॉज लुकिंग सो गुड एंड वंस वी क्रॉस दिस हम लोग समृद्धि कनेक्ट हो गए और वहाँ से हम लोग ने जो जर्नी चालू किया फिर तो सीधा हमारे घर पर ही आके रुके। द इवनिंग स्काईलाइन ऑन समृद्धि हाईवे वॉज सो ब्यूटिफुल। जाते जाते कभी वो ऑरेंज था तो कभी येलो हो गया तो कभी लाइलैक हो गया तो वायलेट हुआ, फिर रेड होने लग गया। इट वॉज सो नाइस टू सी। सिटी में रहते हुए ये जनरली हमें देखने का मौका मिलता नहीं है, बट इट वॉज सो गुड। फिर हम लोग हमारा म्यूज़िक एंजॉय करते करते घर पहुँच गए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया बट डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट। रात को 11:30 बजे हम अपने घर पहुंच गए एंड दिस ट्रिप इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट ट्रिप्स नाउ।